لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے اور تم ضرور بھی ضرور اس کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ اگر ایک بالشت جائیں گے تم بھی اس کے ایک بالشت جاؤ گے، اگر وہ آدمی اگر ایک بازو جائیں گے تو تم بھی اس کے ایک بازو جاؤ گے، کسی سانڈے کے دل میں گھس جائے تو تم ضرور بھی ضرور اس کی پیروی کرو گے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، تو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس سے پہلے تو یہود و نصارہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جس کو دنیا یہود و نصارہ کے نام سے جانتی ہے، تم ضرور بھی ضرور اس کی پیروی کرو گے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان کے بات کرنے کا طریقہ، ملاقات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، ان کی اکثریت لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، فرماتا چلوں، آج ہم میں سے کئی سارے مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے طور طریقے کو اپنائے ہوا ہے اور اس کو اپنا اسلام مانتا ہے، اس کو اپنی شریعت مانتا ہے، اس کو اپنا کلچر مانتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دوسروں کے طور طریقے ہیں، لوگوں کے پیروکاری ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہی وہ چیزیں ہیں۔ آج مسلمانوں کے کپڑے دیکھ لیجئے، آج ان کے ہیئر کٹ دیکھ لیجئے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے پیروکاری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی اتنے زوردار انداز سے ہم نے اس کو اپنا لیا، جبکہ یہود و نصارہ بھی اس کو اس طرح سے نہیں مانتا۔ یہود و نصارہ کا کوئی فیسٹیول ہو، کوئی تہوار ہو، کوئی میلہ ہو، اس میں ان لوگوں کو پتہ نہیں رہتا ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور لوگوں، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج مسلمانوں نے دوسرے کے طور طریقے کو اپنا لیا میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری ایسی احادیث ہے کہ تم اگر میرے بعد میرے صحابہ کرام کے راستوں پر چلو گے تبھی تم جنت میں داخل ہو پاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری پیشن گوئیاں ہیں جس کے مطابق ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، کئی سارے لوگوں کے ایسے قبر ہیں جس کے سامنے لوگ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اس کو اپنا دستگیر مانتے ہیں، ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ کئی سارے مزارات ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لی، جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو درگاہ بنا لیا، مزار بنا لیا۔ اور لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور لوگوں، جب اسلام کے اندر نبیوں کے قبروں کو بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، انہوں نے اپنے استادوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے اور لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام سے کہنا چاہتے ہیں، اپنے امت کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، میرے مرنے کے بعد تم میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، چومنے کی جگہ نہ بنا لینا، فریاد کرنے کی جگہ نہ بنا لینا، ہاتھ پھیلانے کی جگہ نہ بنا لینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا اس وقت کہہ رہے ہیں خذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ نے اپنے استادوں کو اپنا رب مان لیا تھا، جبکہ ایک ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، وہ لوگ اپنے استادوں کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، ولکنہ اذا
काना इस्तहल्लुहु अल्लु, लेकिन वो अगर किसी चीज को हलाल कह देते, उसका उस्ताद अगर किसी चीज को हलाल कह देते तो लोग उस चीज को हलाल मानने के लिए तैयार हो जाते, और किसी चीज को अगर वो हराम कह देते तो लोग उस चीज को हराम मान लेते। मेरे प्यारे साथियों, आज तो यही हो रहा है। हमारे समाज में देख लें, मौलाना मानते हैं, अपने आप को दाई मानते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर मानते हैं, वो बगैर इल्म के फतवा देते हैं, वो बगैर इल्म का फतवा देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, फतवा देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फतवा उस वक्त तक तुम ना दे सकते हो जब तक तुम्हारे ऊपर, जब तक तुम उसके बारे में पूरी जानकारी ना ले लो। और मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिसका उसके पास कोई नॉलेज नहीं, और वहाँ उन्होंने हराम और हलाल का फतवा लगा दिया है। और लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से तो ये भी पता चलता है कि इससे पहले कई सारे लोग थे, यहूद और नसारा ने अपने उस्तादों को अपना हलाल और हराम का मालिक मान लिया था। मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा दौर आ जाएगा कि तुम बनी इसराइल के तौर तरीके को अपना लोगे, और इतनी ज्यादा मुशाबिहत होगी कि एक जूता और दूसरे जूते के दरमियान जितनी ज्यादा दूरी होती है उतना मुशाबिहत होगी। यह हदीस आपको तिरमिज़ी में मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयातियन्ना अला उम्मती मा अला बनी इसराइल, मेरे उम्मत के लोग बनी इसराइल के तौर तरीके पर आ जाएंगे, हदवन्नाले बिन नाले, और इनके अंदर इतनी ज्यादा मुशाबिहत होगी, इतनी ज्यादा मुशाबिहत होगी कि लोगों के जूते के दरमियान ज्यादा फासला होती है, इतनी ज्यादा इनकी मुशाबिहत हो जाएगी। हत्ता काना मिन उम्मता उम्महु अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसना दालिक। और ए सहाबा कराम, तुम जरूर भी जरूर देखोगे मेरे उम्मत के लोग, अगर यहूद व नसारा में से कोई आदमी अगर अपने माँ की एलानिया तौर पर बदकारी करे तो तुम जरूर भी जरूर देखोगे कि मेरे उम्मत के लोगों में से कोई ऐसा आदमी होगा जो जरूर भी जरूर उसकी पैरवी करेगा। और लोगों, आगे हदीस के अल्फाज हैं, इसराइल के अंदर 72 फिरके हुए थे, मेरे उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, के तमाम लोग जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, सिवाय एक मिल्लत के, सिवाय एक मसलक के, सिवाय एक जमात के। सहाबा कराम पूछने लगे, मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, वो कौन लोग होंगे, वो कौन सी जमात होगी जो आपके साथ जन्नत में दाखिल होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी के अल्फाज है, मा अना अलैहि व असहाबी, मैं और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं, अगर आने वाली कौम, आने वाली मिल्लत, आने वाली जमात अगर उस चीज को अपना लेगा तो याद रखो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो देखेगा कई सारे फितनों को देखेगा, कई सारे इख्तिलाफात को देखेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लोगों से कहा था कि तुम्हें उस वक्त डरने की जरूरत नहीं है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदिय्यीन अर्राशिदीन, तुम मेरे सुन्नत को, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस, तुम उसको इस तरह से थामना जिस तरह दांत के धार से लोग किसी चीज को थामते हैं और उसको नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह तुम दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते रहना, उनके सुन्नत को अपना लेना, सहाबा कराम की सुन्नत को अपना लेना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ऐसे ऐसे फितने बर्पा हुए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम आने वाले जमाने में मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन के सुन्नत को थामे रखना, उसको नहीं छोड़ना। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और दीन के अंदर नई इजादात करदा चीजों से बचते रहना। फइन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदातिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार, क्योंकि दीन के अंदर नई इजाद करदा चीजें, ये तमाम के तमाम चीजें बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और तमाम के तमाम बिदअत गुमराही है। और एक हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस है, व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और तमाम के तमाम गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीजें।
मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा दौर आ जाएगा, कब्र में मुब्तला हो जाएंगे लोग, एक दूसरे के लिए दुनिया के हुसूल में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। आज वही दौर आ चुका है। ये मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है, वो उम्मती दाउल उमम, तुम जरूर भी जरूर देखोगे कि मेरे उम्मत के लोग दाउल उमम में मुब्तला हो जाएंगे। सहाबा कराम ने पूछा, मा दाउल उमम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये दाउल उमम किस चीज का नाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अशरु वल बतरु अत्तकासुरु वत्तनाफुसु फिद दुनिया। तुम देखोगे कि मेरे उम्मत के लोग एक दूसरे पर फख्र करेंगे, एक दूसरे से तकब्बुर करेंगे। आज आप देख लें, हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीजें पाई जाती है। कोई इल्म के बुनियाद पर फख्र कर रहा है, कोई अमल के बुनियाद पर फख्र कर रहा है, कोई दुनिया के हुसूल के बुनियाद पर फख्र कर रहा है, कोई अपने मालों के बुनियाद पर फख्र कर रहा है, कोई अपने बंगलों के बुनियाद पर फख्र कर रहा है, कोई जमीनों जायदाद के बुनियाद पर फख्र कर रहा है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया था कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मेरे उम्मत के लोग दाउल उमम में मुब्तला हो जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाउल उमम की तशरीह इसी तरह से की, इसी तरह से एक्सप्लेन किया। और आगे हदीस के अल्फाज हैं कि ऐ मेरे सहाबा कराम, तुम जरूर भी जरूर देखोगे अल अशरु अल बतरु अत्तकाफुरु वत्तनाफुसु फिद दुनिया, मेरे उम्मत के लोग दुनिया के उसूल में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, लोग एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। जबकि याद रखना, एक ऐसा भी दौर आने वाला है, एक ऐसा भी दौर आने वाला है, वत्तबागुज़ वत्तासुद हत्ता यकूनुल बग़, लोग एक दूसरे से बुग़्ज़ रखेंगे, लोग एक दूसरे से कीना रखेंगे, लोग एक दूसरे से हसद करेंगे, हत्ता यकूनुल बग़, और ये हसद की इंतहा यहाँ तक पहुंच जाएगी कि लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से जुल्म करना शुरू कर देंगे। और आज ये तमाम चीजें हो रही है। आप लोगों के सामने वो हदीस भी बयान कर देना चाहता हूँ जो अबू दाऊद की हदीस है और आज के जमाने से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह से, यूशिकुल उममु तदा कमा तदाल अकलतु इला क़सातिया, मेरे उम्मत पर तमाम लोग टूट पड़ेंगे, दूसरे उम्मतें टूट पड़ेंगी उसी तरह जिस तरह एक भूखा आदमी खाना पर टूट पड़ता है। आगे हदीस के अल्फाज हैं, एक आदमी ने कहा, सहाबा कराम में से किसी ने कहा, फ़क़ाल क़ाइलुन मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या अल्लाह के नबी क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल आंतुम कसीर, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद करोड़ों में होगी, अरबों में होगी। मेरे प्यारे साथियों, वलाकिन्नकुम गुसाइन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत उस पानी के तिनके की तरह होगी जो कहीं कहीं दूर जाकर वो फूट जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से रोब दबदबा को निकाल देगा। और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन नाम की बीमारी को डाल देगा। सहाबा कराम ने पूछा, मल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये वहन किस चीज का नाम है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, एक दौर ऐसा आ जाएगा लोग दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे और आखिरत से नफरत करने लगेंगे। और आज ये तमाम चीजें हो रही है। अगर हम और आप कल क़यामत के दिन के लिए तैयारियां करते, अगर हमें मौत से नफरत ना होती तो हम कल क़यामत के दिन के लिए तैयारियां करते, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए बेताब हो जाते, नमाजें पढ़ते, अपने सरों को अल्लाह ताला के सामने झुकाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीके को अपनाते। लेकिन ये तमाम चीजें नहीं हो रही है। इससे ये पता चलता है कि आज हमने दुनिया से मोहब्बत करना शुरू कर दिया है और मौत से नफरत करना शुरू कर दिया है। यही वजह है